Good morning, student, and welcome to my English language class. My dear student, today I am going to explain you the kinds of adjective. Yesterday I explained you adjective in my last video, and previous videos also I explained you adjectives. Today I will explain the demonstrative adjectives. What are the demonstrative adjectives? Here it is. Demonstrative adjectives. Read these sentences. If you are having book, so my dear student, take out your book and notebook also, because I will tell you the answer of your worksheet number 39. Okay. Now let's start the lesson. This boy is strong. That boy is weak. These mangoes are sour. Those mangoes are sweet. Such men are very brave. Now you can see here some words are highlighted with pink color. This, that, these, those, such. My dear student, all these words are your demonstrative adjective. Okay, you have to learn all these. This and that is singular, and these and those are plural. We use it with plurals, and we use this and that with singular. Okay. Now it will be noticed that the adjective in the above sentences are used to point out person or thing. All these adjectives are pointing to person or thing. This is pointing to boy, that is pointing to boy, both are person, and these and those are pointing to mangoes, and such is pointing to person, man, है ना? So all these words are your demonstrative adjectives. So such adjective which point out a person or things is known as demonstrative adjective. Demonstrative adjectives answer the question which. This boy is strong. The question will be for this sentence, which boy is strong? The answer will be this boy is strong. For second statement, that boy is weak. The question will be which boy is weak? Answer will be that boy is weak. These mangoes are sour. Which mangoes are sour? These mangoes are sour. Those mangoes are sweet. Which mangoes are sweet? Those mangoes are sweet. Means जब हम इस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए हमें पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो वो जो क्वेश्चन है वो इस विच वर्ड से बनेगा, है ना? जैसे अभी मैंने आपको बताया दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग. अब आपका क्वेश्चन बना सकते हो इससे आपकी व्हाट बॉय इज स्ट्रॉन्ग, वेयर बॉय इज स्ट्रॉन्ग. नो ना, ये रॉन्ग हो जाएगा ना, ये फिर आंसर ये नहीं बनेगा, फिट नहीं बैठेगा. तो अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे विच बॉय इज स्ट्रॉन्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग. और जैसे ये है आपका एग्जाम्पल 3, दीज मैंगोज आर स्वीट, तो इसका भी क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच मैंगोज आर स्वीट. श्योर, हियर श्योर. विच मैंगोज आर श्योर, दीज मैंगोज आर श्योर. कौन से आम खट्टे हैं? ये वाले आम खट्टे हैं. दीज मीन्स ये. तो दिस एंड दैट इज यूज्ड विद सिंगुलर. बॉय बॉय सिंगुलर है ना, फिर इधर मैंगोज मैंगोज, तो इसके लिए हमने दीज और दोज वर्ड यूज़ किया. तो जो दीज और दोज वर्ड है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है. अंडरस्टैंड? आपको ये ध्यान रखना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए कि दिस दैट दीज दोज हमारे एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, और दिस और दैट जो हैं सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, और दीज और जो दोज हैं वो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं. और इसके साथ ही जो ये दिस है आपका, ये दिस वर्ड, ये दिस और ये दीज, जो चीज़ पास होती है, नियर होती हैं, ठीक है, पास होती हैं, उनके लिए वी यूज़ दिस एंड दीज. और जो चीज़ हमसे दूर होती हैं, ये आपको केजी में भी सिखाया जाता है, यूज़ ऑफ दैट एंड दोज. जो चीज़ हमसे दूर होती है उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं,
दैट एंड दोज। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि दिस एंड दीज पास के लिए होता है और दैट और दोज दूर के लिए यूज़ करते हैं, और जो दिस और दैट है वो सिंगुलर के साथ होता है, यूज़ होता है। एंड दीज एंड दोज वी यूज़ विथ प्लूरल पर्सन और प्लूरल थिंग्स। ठीक है, अगर थिंग्स जो प्लूरल में होंगे तब हम दीज और दोज यूज़ करेंगे, अगर थिंग या पर्सन सिंगुलर में होंगे तो वी विल यूज़ दिस एंड दैट। अंडरस्टैंड? नाउ योर अनदर इज हियर इंटेरोगेटिव। Yes, interrogative adjectives. This is interrogative adjectives. In this, in the first you look at the picture. Here is a kangaroo. Here are two boys looking at the house, and here one girl and one boy is here, and one boy is here, and he is holding a pen in his hand. इसके हाथ में एक पेन है ना, दे देखो। अब क्या है, वॉट काइंड ऑफ एनिमल इज इट। ये क्वेश्चन किसके लिए किया जा रहा है, इस कैंगरू के लिए। वॉट काइंड ऑफ एनिमल इज इट, मतलब ये किस तरह का जानवर है। नेक्स्ट, विच हाउस इज हर्स। विच हाउस इज हर्स। हर्स तो गर्ल के लिए यूज़ होता है ना, तो ये दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, विच हाउस इज हर्स, उसका घर कौन सा है। तो और यहाँ पर ये लड़का कुछ पूछ रहा है, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। तो जो ये क्वेश्चन बने हैं ये किससे बने हैं, दिस से व्हाट, विच एंड हुज, दीज आर द वर्ड्स। इससे हमारे क्या बने हैं, क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। समझे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जिससे क्या बनते हैं, हमारे क्वेश्चंस फॉर्म्ड होते हैं। उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। आफ्टर दिस पॉजेसिव एडजेक्टिव। नाउ लिसन अबाउट इट वेरी केयरफुली। पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउ एग्जांपल्स। फर्स्ट इज दिस इज माई बुक। दिस बॉय इज सेइंग दिस इज माई बुक। ये लड़का कह रहा है कि ये मेरी किताब है। ठीक है, तो लड़का अपने लिए ही कह रहा है। जब हम कोई चीज़ अपने लिए ही कहते हैं तो हम कहते हैं माई। हम क्या कहते हैं, माई, कि ये मेरा है। इन सेकंड पिक्चर, दैट इज़ आवर स्कूल। अब यहाँ दो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं ना, तो ये तो सिंगुलर है, इसलिए ये अपनी बुक को अपना बता रहा है, तो माई यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर ये दो बच्चे हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये स्कूल हमारा है, तो क्या वर्ड यूज़ होता है, हो रहा है इसमें आवर। दैट इज़ आवर स्कूल, वो हमारा स्कूल है। फिर दैट इज़ योर बुक, वो तुम्हारी किताब है। वो दूर पड़ी हुई है, देखो दूर है इन दो बच्चों से, तो ये बता रहा है इसको कि तुम्हारी किताब वो है, तो उसको क्या बोल रहा है, तुम्हारी बोल रहा है उसे, योर। क्या बोल रहा है, योर। इन दिस पिक्चर हीज बुक इज़ ऑन द टेबल। क्या वर्ड यूज़ किया हमने, हीज, उसकी किताब टेबल के ऊपर है, हीज वर्ड यूज़ किया। तो ये जो हीज वर्ड है पिंक कलर से जितने भी हाईलाइटेड है, जो हीज वर्ड है ये बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। ओके, हर बुक इज़ इन द बॉक्स, उसकी किताब बॉक्स के अंदर। ये कौन है, गर्ल है ना, तो गर्ल के लिए कौन सा यूज़ होता है वर्ड, हर। ओके, और जो ये माई वर्ड था, ये लड़की भी बोल सकती है दिस इज़ माई बुक, लड़का भी बोल सकता है दिस इज़ माई बुक। नाउ इन पिक्चर 6, देयर पेन्स आर इन देयर हैंड्स। उनके पेन, ये दो जनों के बारे में बात करें। उनके पेन कहाँ हैं, उनके हाथों में हैं। उनके पेन उनके हाथों में हैं। देयर, देयर मीन्स उनका या उनकी। ठीक है, जो ये वर्ड्स है माई, अवर, यूअर, हीज, हर, देयर, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, इट गिव्स द आंसर द क्वेश्चन हुज। हुज क्वेश्चन होता है ना, हुज से जो क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, हुज बुक इज दिस। अगर हमें इस सेंटेंस के लिए क्वेश्चन बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, हुज बुक इज दिस, तो दिस इज माई बुक, तब ये आंसर होगा। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड, दैट इज आवर स्कूल, हुज स्कूल इज दैट, हुज स्कूल इज दैट।
then answer will be that is our school. Then that is your book. Whose book is that? That is your book. His book is on the table. Whose book is on the table? His book is on the table. अभी फिर से आपको बताती हूँ मैं. His हम यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए और हर गर्ल्स के लिए. हर बुक्स इन द बॉक्स, इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा? Whose book is in the box. फिर हम आंसर देंगे इस हर को यूज़ करके. हर बुक इज़ इन द बॉक्स. आई बात समझ में? इतना आपको समझ में आया? तो ये आपका रह गया था, मैंने समझा दिया. और इससे और आपको एडजेक्टिव्स के बारे में आपको रिवीजन करनी है. तो जो पहले मैंने आपको वीडियोस भेजी थी जिस लेसन एडजेक्टिव्स था, एडजेक्टिव्स एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, उसको आप दोबारा से देखिए. आप उसको दोबारा से देखिए और उसको फिर कीजिए. क्या प्रैक्टिस कीजिए उसकी ध्यान से सुनकर. ओके, नाउ हियर इज़ योर वर्कशीट नंबर 4. दिस इज़ योर रिवीजन वर्कशीट नंबर 4. अब आप ये मत समझना माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 कि आपका ये रिवीजन वर्कशीट है तो मैम ने यही क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे. नो, दिस इज़ योर रिवीजन. रिवीजन मतलब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्ज़ाम और आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. अंडरस्टैंड? अब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको सॉल्व इस तरीके से करना है जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ. नाउ लिसन केयरफुली एंड यू कैन नोट डाउन ऑल्सो योर वर्क. फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन पेपर को रीड करना चाहिए. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन किसके बारे में है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे. उसके बाद फिर सोच समझ कर तब हमें आंसर करना. ये नहीं कि फटाफट देखा और स्टार्ट हो गए. नो, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन and you have to know the meaning of the question, then start writing your answer. Understand? Now the question, pick out the adjectives in the following sentence. Pick out means निकालो, ढूंढो. क्या निकालना है आपको, क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव ढूंढना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं. ठीक है, क्या ढूंढने हैं? एडजेक्टिव्स. कुछ और नहीं ढूंढोगे, नाउन प्रोनाउन वगैरह, नो, वर्ब कुछ नहीं. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इस क्वेश्चन में आपको एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं. फिर एंड री राइट इट, इसे दोबारा लिखो विद इट्स अपोजिट्स, इसके अपोजिट्स के साथ. मतलब आपको अब एडजेक्टिव्स निकालने हैं फिर उसका अपोजिट आपको लिखना है. ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट सेंटेंस इज योर आदर्स हैज़ अ बिग बॉल. यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको कौन सा लग रहा है? आदर्स लग रहा है, हैज़ लग रहा है, ए लग रहा है, बिग या बॉल? बताओ. बॉल लग रहा है. बॉल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉल को ही डिस्क्राइब कर रहा है, नो ना? ये नहीं, बिग ये आपका नाउन है. बॉल क्या आपका नाउन है. ये जो बिग वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉल को. बड़ी बॉल होती है ना, बड़ी बॉल, छोटी बॉल, लाल बॉल, हरी बॉल. तो ये बॉल कैसी है? बिग है. इट मीन्स बिग वर्ड इज योर एडजेक्टिव. Understand? Big word is your adjective. So you have to write this sentence again. Rewrite means दोबारा लिखना. You have to write this sentence again with its opposite. ये आपका adjective आपको पता लग गया ना. अब इसके opposite के साथ इसको आप दोबारा लिखोगे और पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से करना है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ. अब जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको ये फ़ायदा है कि उनको पेपर करना आ जाएगा. नाउ आंसर इज आदर्श. आदर्श बिल्कुल वही लिखना है जो ऊपर लिखा है. हैज़, आप भी हैज़ लिखोगे. ए. अब ये बिग आपने पहचाना था एडजेक्टिव है, इसको चेंज करो. व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ बिग? स्मॉल. स्मॉल इज़ द अपोजिट ऑफ बिग. स्मॉल बॉल. आई बात समझ में कि नहीं आई? ये आपका ये वाला जो सेंटेंस है फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व हो गया.
ओके, नाउ 2, आकृति इज़ अ हैप्पी गर्ल। आकृति इज़ अ हैप्पी गर्ल। तो आकृति जो गर्ल है हमारी क्लास में, कैसी गर्ल है? हैप्पी गर्ल है, खुश रहती है वो हमेशा। तो जो ये हैप्पी वर्ड है ये है इसका एडजेक्टिव। ओके, आपका एडजेक्टिव्स कौन सा है? दिस हैप्पी वर्ड। तो यू हैव टू चेंज दिस हैप्पी। अब इसका अपोजिट क्या होगा? हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी। क्लास सेकंड में पढ़ा था ना आपने, हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी। तो जो पिछली क्लास की पढ़ाई होती है बच्चों से भूलना नहीं है, उसको दिमाग में हमेशा याद रखना है। जो पढ़ाई होती है वो हमेशा आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपके आगे क्लास में काम आती जाती है। आकृति, आकृति, फिर है इज, फिर है ए। अब हैप्पी का हम क्या बना देंगे अपोजिट? अनहैप्पी। द अपोजिट ऑफ हैप्पी इज अनहैप्पी। फिर गर्ल का नहीं करना है हमें, गर्ल को हम गर्ल ही रहने देंगे, बस हो गया एडजेक्टिव का अपोजिट। ओके, और जो बाकी ये सारे हैं 10 तक यू हैव टू डू योर सेल्फ, बट आई एम टेलिंग यू द अपोजिट। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन द अपोजिट ऑफ योर एडजेक्टिव्स। These are sweet grapes. This sweet is adjective of grapes. So you have to change this sweet. The opposite of sweet is sour. Sweet means meetha, sour means khatta. S-A-U-R. Okay. Now, fourth, I like fresh food. In this sentence, this fresh word is your adjective. The opposite of fresh means the opposite of fresh is stale. Stale means basi. Now fifth, I have a new coat. In this sentence, this new is your adjective. The opposite of new is old. Now sixth, it is a dull day. This dull word is your adjective. The opposite of dull is bright. Now here, it is a curved line. It is a curved line. लाइन के लिए क्या बता रहे हैं? कर्व। कर्व होती है ना लाइन, तो इसका क्या आएगा आंसर? स्ट्रेट। द अपोजिट ऑफ कर्व इज स्ट्रेट। कर्व बोलते हैं ऐसे जो ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है, और स्ट्रेट होती है ऐसे एकदम सीधी। तो अपोजिट ऑफ कर्व इज स्ट्रेट। नाउ इन योर 8th सेंटेंस, सोहन इज अ पुअर मैन। अब इस मैन का एडजेक्टिव क्या है? पुअर। पुअर वर्ड इज डिस्क्राइबिंग टू सोहन मैन। ओके, तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दिस पुअर? रिच। नाउ 9th, माधव इज अ फुलिश मैन। माधव इज अ फुलिश। फुलिश मीन्स मूर्ख। तो इसका हम क्या बना देंगे अपोजिट? क्या होगा बताइए? द अपोजिट ऑफ फुलिश इज वाइस। W-I-S-E, वाइस मीन्स होशियार, बुद्धिमान। नाउ 10th, दोज आर लेजी बॉयज। दिस लेजी इज योर एडजेक्टिव फॉर बॉयज। ये आपका एडजेक्टिव है लेजी। तो लेजी का अपोजिट क्या होता है? लेजी मीन्स सुस्ती जो होते हैं, उसके अपोजिट को क्या बोलेंगे हम? एक्टिव या फिर स्मार्ट। ओके, नाउ आफ्टर दिस हियर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। फिल इन द ब्लैंक्स, इंडिकेट इन द ब्रैकेट। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब जो ये ब्लैंक है इसको फिल करो, आपको इसमें भरना है कुछ, और वो क्या भरना है? इंडिकेट इन द ब्रैकेट। वो ब्रैकेट में आपको बताया गया, इंडिकेट किया गया है आपको ब्रैकेट में, ठीक है। जैसे ये कर रखा है, ये ब्रैकेट्स ये है ना, तो यहाँ ये इंडिकेट किया हुआ है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो ये भी मैं आपको हिंट देती जाऊँगी, आपको फिर ये वर्क खुद करना है। द काओ इज़ द डैक्स एनिमल। काओ देखिए ना सबने, तो उसका बनाना है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, मतलब हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फील करनी है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? काओ की क्वालिटी क्या होती है बताओ? एक क्या होती है वो? फेथफुल होती है या यूज़फुल होती है?
क्या होती है बताओ बच्चों? यूजफुल। यूजफुल होती है ना, वो हमें दूध देती है ना, गाय देती है कि नहीं देती? और उसके दूध से कितनी सारी चीज़ें बनती है, दही, मक्खन, घी, मिठाइयाँ सब बनती है ना। तो ये इसकी क्वालिटी हो गई, ठीक है। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, हमें ब्रैकेट में इंडिकेट किया गया था फिल द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो आई फील्ड हियर adjectives of quality. Now Dax boys always speak the truth. Dax यहाँ आपको फिल करना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब कैसे बॉयज़ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलते हैं। कैसे बॉय बोलते हैं? ये जो बॉयज़ है ना, इसकी क्वालिटी बताओ। कैसे बॉयज़ बोलते हैं? हमेशा सच, गुड बॉयज़, है ना। तो गुड जो है बॉयज़ की क्वालिटी हो जाएगी। Good boys always speak the truth. Okay. Now third is there are fingers in my hand. There are Dax finger in my hand. Adjective of numbers. आपको मैंने adjectives of number बताए थे, तो ये तो बहुत easy सा sentence मैंने आपको दिया है। fingers, अब आपको पता ही है how many fingers you have in your hand. कितने फिंगर है आपके हाथ में? 5 ना। तो आप यहाँ क्या फील करोगे? 5, और ये नंबर भी है FIVE 5। अंडरस्टैंड? फिर डैक्स मैन आर वेरी क्रूल, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। यहाँ पर भी आपको एडजेक्टिव्स और नंबर फिल करना है, तो वो फिल करके मैन आर वेरी क्रूल। तो आपको जो यहाँ पे वर्ड यूज़ करोगे वो वर्ड होना चाहिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। जैसे ये क्वालिटी वाले थे दोनों वर्ड, और ये नंबर वाला वर्ड है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर एक नंबर वाला वर्ड फील करना है, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव डैक्स मिल्क, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आई हैव ड्रंक, आई हैव ड्रंक, ड्रंक मीन्स पी लिया। क्या करा? पी लिया। ड्रंक मीन्स पी लिया। आई हैव ड्रंक मिल्क, मैंने दूध पी लिया। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बतानी है आपको। आपको क्या बताना है? क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप क्या लिख सकते हो? आपको याद है? तो जो क्वांटिटी वाला वर्ड है वो यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था। सम, मच, लिटिल, एनी, इनफ, इस तरह के वर्ड मैंने आपको बताए थे ना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। तो वैसा ही कोई नंबर आप यहाँ पर फील करोगे। I have drunk milk, adjectives of quantity. I have drunk much milk. You can fill here much milk, और या फिर enough. I have drunk enough milk. ठीक है, ये भी आप फिल कर सकते हो। फिर है आपका I ate Dax rice, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आपको यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बतानी है। जैसे अभी आपने बताया इनफ बताया ना मैंने आपको, जैसे आई एट राइस, तो आप क्या फील करोगे? सोचो, फिट करके देखो क्या चीज़ यहाँ पर ठीक रहेगा। इनफ ठीक रहेगा, सम ठीक रहेगा, मच ठीक रहेगा, या लिटिल ठीक रहेगा। आई एट, खा लिया मैंने चावल, तो कितना चावल खा लिया, इसको सोचो। और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर आपको फील करनी है, मतलब इनफ, एनी, लिटिल, मच, सम, इनमें से कुछ आपको यहाँ पर फील करना है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं तो बता दूंगी, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे और खुद ध्यान दोगे, किताब खोलोगे, पढ़ोगे, तब आप इसको फील करोगे, ठीक है ना। तो उससे आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। अब मैंने बोला, मैंने लिख दिया, आपने कॉपी कर लिया, तो आपकी क्या प्रैक्टिस? कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो इसलिए मैं ये नहीं कर रही हूँ अभी। नंबर 7, डैक्स फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल। डैक्स, अब यहाँ पर आपको भरना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अभी आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बताया, दिस, दैट, है ना, दीज, दोज, ये सब सिंगुलर प्लूरल के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो उसको आप फिर से रिवाइज करो, फिर से सोचो कि मैम ने हमने क्या बताया था, और फिर इसमें ढूंढो और खुद फील करो। डैक्स फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल, खुद करो आप इसे। देखो इसमें ये सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल तो नहीं है,
सिंगुलर के लिए मैम ने क्या बोला था, प्लूरल के लिए मैम ने क्या बताया अभी। तो ये आपको दोबारा से सोचना है और फिर यू हैव टू फील हियर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एंड हियर अगेन दैट्स गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, अगेन यू हैव टू फील डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नाउ बॉय ब्रोक द पेंसिल, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, मतलब जिससे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, जिस वर्ड से क्वेश्चन बनता है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, अब आप सोचो व्हाट बॉय ब्रोक द पेंसिल, क्या ये सेंटेंस ठीक रहेगा? वेयर बॉय ब्रोक द पेंसिल, क्या ये क्वेश्चन ठीक रहेगा? विच बॉय ब्रोक द पेंसिल, क्या ये क्वेश्चन ठीक रहेगा? इस तरह से जितने भी आपको मैंने वर्ड बताए हैं इंटेरोगेटिव के, उसको यहाँ पे फील करके देखो पेंसिल से और सोचो इज इट राइट और रॉन्ग। फिर जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बनाया है, इट इज़ राइट, देन राइट डाउन हियर, fill this blank place with interrogative adjective. Again interrogative adjectives, pen is this, pen is this। अब यहाँ पर सोचो आप कौन सा वर्ड करोगे। ओके, जब ऐसे अपने दिमाग को यूज करोगे ना तभी आपको आएगा। he lost car, possessive adjective, he means boy, boy के लिए होता है ना यूज ही, तो अब इसके साथ कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा? अभी मैंने आपको बताया भी था बॉयज़ के लिए कौन सा आता है। तो यू फील हियर दैट पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, नाउ मीरा इज प्लेइंग विद डेक्स डॉल, अगेन हियर इज ही इज यूज फॉर बॉय एंड मीरा इज अ गर्ल। अब आप सोचो कि गर्ल के लिए मैम ने क्या बताया था कि ये वर्ड गर्ल के लिए यूज़ होता है, तो वो वर्ड आपको यहाँ पर फील करना है। ओके, मीरा इज प्लेइंग विद डेक्स डॉल, उसे आपको कौन सा एडजेक्टिव फील करना है? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। अंडरस्टैंड? तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आप पेपर में भी बहुत अच्छा पेपर करोगे, क्योंकि पेपर आपका इसी टाइप का है, सेंटेंस ये नहीं है पर है बिल्कुल इसी टाइप का। इस टाइप से आपका पेपर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसी टाइप से आएंगे। ठीक है, टाइप्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ पेपर्स, नॉट द सेम क्वेश्चन नहीं है ये। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, वॉचिंग द वीडियोस, और आप वीडियोस देखा करो, ये नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश देखोगे, नो, हर सब्जेक्ट की वीडियोस देखिए, ऑल सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब देखिए। और उसको देखने के बाद एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता। बिकॉज अब यही एक मेथड है आपको पढ़ाने का और आपके पढ़ने का, बिकॉज ऑफ COVID-19। सो माय डियर स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। अब हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय।